हाय। कहते हैं ये दुनिया गोल है। तो अगर इस दुनिया के एक तरफ से निकल के चले और आगे बढ़ते बढ़ते हम दूसरी तरफ से होते हुए वापस उसी तरफ पहुंच जाएंगे। पर क्या इस दुनिया का कोई एक तरफ या कोई एक कोना या एंड है? इज देयर एन एंड टू दिस अर्थ? एक्चुअली देयर इज। Antarctica, the coldest, the brightest, the whitest, the driest place of Earth, is known as the end of the Earth. End of the Earth, in a sense that there is no living, there is no civilization there. Actually, there are no living conditions as well. So, there are no people, very few people are there who have actually visited Antarctica as well. In our next chapter, दोस्तों, we are going to talk about this coldest place, Antarctica. And this is written by a young journalist come writer known as Tishani Doshi. She was a part of a program called Student on Ice. It was a program from one organization to take the students to different places in the world and let them know the realistic education about the past, the present, and the future of the earth. So let's go ahead and look into this. This is the third chapter in your book Vistas, in supplementary book. It is the name of the chapter is Journey to the End of the Earth. All right. So let's go ahead and check it out. And let me share the screen with you. All right, so I believe now you can see the screen. As we said, the name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Before actually we read ahead, let's see this quote here. If you want to know more about the planets, the planet Earth we know as, about the planet's past, present, and future, the Antarctica is the place to go to. This is actually a quote from this chapter from Tishani Doshi again. Then the quote is ending as Bon voyage. Bon voyage is a French term for happy journey. So if you are actually going to visit the place, maybe later on you will get a chance to visit Antarctica. And right now, let's go ahead and check it out with our literature journey to Antarctica. Let's have a journey to the end of the earth. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Vessel means the large ship. The academic Shokolesky, that's the name of the ship, heading towards the coldest, the driest, the windiest, the continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras, and Madras is actually the old name for Chennai, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. So that's her way of descript. Um, so that's her way of describing the total journey taken from Madras, her native town, to the Antarctica. That's a long, long journey from where she started, and then reaching Antarctica, it takes around 9 different time zones in the middle, and as well as there are 6 checkpoints where you need to go through different checkings, and 3 bodies of water. The different oceans amalgamate there. So, and at least as many as ecospheres, and so many ecospheres also you change. So that's the journey, and that's our style of describing the journey. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. तो एक्चुअली में जब तक ये वहां पे पहुंची, जब पैर जमीन पे पहली बार रखे, उस समय तक इसको 100 घंटे हो गए थे घर से निकले हुए। उन 100 घंटे के टाइम में उसने कार में भी ट्रैवल किया, एरोप्लेन में भी ट्रैवल किया, शिप में भी ट्रैवल किया. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो 100 घंटे की जर्नी, वो भी इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन से निकलते हुए, डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से करके आके लोग थक जाते हैं. तो फाइनली जब पैर जमीन पे पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो फीलिंग होता है वो रिलीफ का ही होता है. और वो फीलिंग कहाँ पे आ रही है? एंटार्क्टिका के इतने बड़े फैले हुए वाइट लैंडस्केप पे. ब्यूटीफुल वाइट लैंडस्केप प्लस अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन मींस जहां तक नजर जाती है आपका पूरा वाइट ही वाइट दिखता है, और जहां वो वाइट एंड होता है उसके ऊपर सीधे सीधे आसमान ब्लू स्टार्ट हो जाता है. ब्लू होराइजन एंड वाइट लैंडस्केप, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन.
और वहां पे उस ब्यूटी को एंजॉय करने से पहले उसकी जो फीलिंग थी वो रिलीफ की थी। Followed up with an immediate and profound wonder, और एकदम से उसको उस रिलीफ के बाद उसको क्या मिला, एक और वंडरफुल वाला एक्सपीरियंस मिला। वो वंडर एक तरीके से हैरान हो गई कि कितना ब्यूटीफुल नजारा था। वो वंडर क्या था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी मतलब बहुत बड़ा था। जहां तक नजर जा रही है वाइट ही वाइट लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। इट्स आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स दुनिया से अलग थलग है, बिल्कुल है दुनिया का ही लास्ट पार्ट, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग, कोई सिविलाइजेशन नहीं। But mainly how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. दोस्तों ये एक छोटी सी पास्ट की हिस्ट्री बता रही है। बहुत सालों पहले इंडिया वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एज इन जो अभी छोटा सा पार्ट है एंटार्क्टिका, वो सेम लैंड मास, इट वॉज अ बिग लैंड मास एट द बॉटम ऑफ द अर्थ वेयर इंडिया वॉज ऑल्सो कनेक्टेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पहले ऐसा कुछ हुआ है कि वो लैंड मास कट के ऊपर चला गया जिससे इंडिया फॉर्म हुआ है, और वो बाद में धीरे धीरे जाते जाते हुए एशिया के दूसरे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एशिया से कनेक्ट हो गया है। बट दिस इज द थ्योरी साइंटिफिकली जो प्रूवन भी है, और उसी के बारे में बात कर रही है कि ऐसा कैसे होता है। आपको वो देखते ही ऐसा लगता है कि यार इस तरफ इंडिया था, यहाँ से कनेक्टेड था इंडिया, और ये इतना आइसोलेटेड कैसे है। सो दैट्स द काइंड ऑफ वंडर शी वाज फीलिंग एट दैट टाइम। So, part of history, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. अब ये चैप्टर का नया सेक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पे राइटर जो है हमें एक साइंटिफिक थ्योरी जो एक हिस्ट्री से रिलेटेड है अर्थ की, वो बता रही है। अराउंड 650 मिलियन ईयर्स पहले, उसने टाइम पहले एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना नाम का। वो कहाँ पर था? जो आज का प्रेजेंट डे हमारा एंटार्क्टिका है, इट वाज जस्ट अ सेंटर ऑफ दैट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। सो इतना बड़ा जाइंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना नाम का, जिसका एक पार्ट इंडिया भी था, राइट? सो दिस इज द हिस्ट्री राइटर इज टॉकिंग अबाउट नाउ। Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer. अब वो कह रही है कि यहाँ पे चीजें उस वक्त ऐसी नहीं थी जैसी अभी हैं। पहले यहाँ पे जो था डिफरेंट क्लाइमेट था, वार्मर था। ह्यूमन बींग तो ऑब्वियसली अर्थ पे पैदा ही नहीं हुए थे। ह्यूमन बींग की हिस्ट्री कितनी है? अराउंड 12-15 हजार साल पुरानी, जबकि ये 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रही है। और climate was much warmer here. Climate was much warmer here, hosting a huge variety of flora and fauna. Hosting a huge variety of flora and fauna. यहाँ पे उस वक्त flora and fauna is like biological name for animals and flowers. तो इस टाइम पे यहाँ पे अंटार्कटिका में लिविंग थी, सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशन एज इन जानवर थे, एनिमल लाइफ वगैरह थी, या वैरायटी ऑफ बायो लाइफ थी, मीन्स बायोलॉजिकल वेराइटी थी वहाँ पे। फ्लोरा एंड फोना बहुत अमाउंट में अवेलेबल था यहाँ पे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव। लगभग 500 मिलियन साल तक गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जिस टाइम पे लगभग डायनासोर वाइप आउट हुए इस अर्थ से, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, यानी कि जब मैमल्स का युग स्टार्ट हुआ, मैमल्स का टाइम स्टार्ट हुआ, ब्लू व्हेल वगैरह ऐसे करके बहुत सारे मैमल्स आए, मे बी काउ वगैरह आई, बाद में धीरे धीरे करते करते ह्यूमन बींग्स भी आने लगे। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो जिस टाइम पे मैमल्स का स्पीशीज स्टार्ट हो रहा था, डायनासोर्स का स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा था, लगभग उस टाइम पे ये लैंड मास का टुकड़ा अलग हो गया और अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग कंट्रीज में बट गया था, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और उस तरीके से लगभग जैसे आज की ग्लोब हमारी दिखती है, वो तब फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जब लगभग डायनासोर खत्म हुए थे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री शी इज टॉकिंग अबाउट। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अगर आप जब एंटार्क्टिका विजिट करते हो तो आप ऑब्वियसली उस पार्ट ऑफ हिस्ट्री के भी पार्ट बन जाते हो, राइट? टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। और इससे आपको पता पड़ता है कि हम यानी कि ह्यूमन बीइंग या ये अर्थ कहाँ से आई है, वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और कहते हैं ना, पास्ट से प्रेजेंट का और फ्यूचर का भी कुछ अंदाजा लग सकता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वेयर आर वी हेडिंग राइट नाउ पॉसिबली। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ
Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इन 650 मिलियन साल में या फिर 650 मिलियन ईयर्स की पूरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जितनी भी चीजें चेंज हुई हैं उन सबको उसने 2-3 पैराग्राफ के अंदर में चेंज कर दिया है। कॉर्डिलरन फोल्ड से लेके प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स भी आ गई, इसमें ओजोन का चेंज होना भी आ गया, कार्बन का भी जो डिटीरियोरेशन हो रहा है वो हुआ, या इवोल्यूशन हुए कई सारी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन हो गया, सब इसने मिला दिया। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, अब अगर आप एक बात सोच के देखो जरा, एक जस्ट एक इमेजिन करके देखो कि मिलियन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, 1-2 साल की नहीं, मिलियन, 10 लाख साल, और वो भी एक नहीं 2-3 या 650 मिलियन साल। उतने सालों के अंदर में इतना सब कुछ हुआ है, राइट? इट कैन बी, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। ये सारा विचार ही आपके दिमाग को चकरा देने के लिए काफी है, दिमाग घूम जाता है, राइट? इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। आप सोचो, इंडिया पूरा का पूरा जो इंडिया है जिसे हम जानते हैं, हम हमारे घर की बात नहीं कर रहे, हमारे रूम की बात नहीं कर रहे हैं। भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो उसमें रूम या बिल्डिंग वगैरह हिल जाती हैं या थोड़ा बहुत शहर का हिस्सा हिल जाता है। यहाँ पे हम अर्थ के पूरे लैंड मास के हिलने की बात कर रहे हैं। लैंड मास यानी कि जिसमें इंडिया इतना बड़ा पूरा कंट्री आ गया, उससे भी बड़ा लैंड मास पूरा का पूरा कट के अंटार्कटिका से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। जस्ट इमेजिन jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। और जब ये इमेजिन करो, वो लैंड मास नीचे से एंटार्क्टिका से टूट के धीरे धीरे मूव करते हुआ, धीरे धीरे ही आएगा ऑब्वियसली, एकदम से जल्दी से नहीं आएगा, इट्स नॉट लाइक अ गेम, राइट? ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके वो इंच बाय इंच मूव होता जाता है, धीरे धीरे चलता जाता है। तो इतना मूव होता जा रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जाके वो एशिया के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था उस टाइम पे उससे जाके टकराता है, और जब टकराता है तो दोनों की अपर क्रस्ट टकराती है, और अपर क्रस्ट थोड़ी कमजोर होती है, तो उस टक्कर की वजह से वो अपर क्रस्ट थोड़ी सी ऊपर की तरफ बस्ट हो जाती है, निकल के आती है, तो उसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ। दिस गाइस इज एक्चुअली अ साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ हिमालयास एज वेल, राइट? साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, उनमें से एक कंट्री साउथ अमेरिका भी थी जो ड्रिफ्ट होके जाके नॉर्थ अमेरिका के साथ में जुड़ गई, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world। कह रहा है कि वो जब साउथ अमेरिका का पार्ट नॉर्थ अमेरिका से जाके कनेक्ट हुआ और बीच में एक छोटा सा ड्रेक पैसेज क्रिएट हो गया उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हमेशा एक सर्कमपोलर करंट चलती रहती है ठंडी, और वही ठंडी करंट जो चलती रहती है वो नीचे एंटार्क्टिका को इतना ठंडा बना दिया कि फ्रिजिड जैसा हो गया, और वहाँ बर्फ जमने लग गई, और इसी वजह से वो डेजोलेट हो गया, यानी सुनसान हो गया, अलग हो गया, और वहाँ सिविलाइजेशन खत्म हो गई। सिविलाइजेशन एज इन वहाँ लाइफ खत्म होने लगी धीरे धीरे। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। सन वर्शिपिंग ये मद्रास में रहती है, जो एक गर्म प्रदेश है साउथ इंडिया का, इक्वेटर के पास का, जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड एज अ चिलिंग प्रोसेस। अब ऐसा कोई पर्सन जो मद्रास में रहता हो, सन वर्शिपिंग हो, और वो जाए ऐसे एरिया में जहाँ पे अर्थ का टोटल 90% टोटल आइस वॉल्यूम रहता है, बहुत ही ठंडा वाला मौसम रहता है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। ये सब जो फिजिकल चेंजेस होंगे उसके ऊपर मेंटल चेंजेस होंगे वो तो है ही सही, बट इमेजिनेशन करने में भी ये काफी कुछ माइंड बॉगलिंग है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल आपने गेम देखा होगा, इसमें 2 डंडियां रहती है, ऐसे बॉल को नचाती रहती हैं, वो पिंग पोंग बॉल। वैसे उसको लगा कि बॉल अभी इधर थी गर्म प्रदेश में और इधर चली गई ठंडे प्रदेश में, लाइक एक बॉल की तरह उसको लगा कि मैं बॉल हूँ, राइट? It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers। एक ऐसा giant ping pong ball है जिसके अंदर में कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, ऐसा लगता है सारा मैकेनिकल है। मैकेनिकल एज इन वो गॉड का क्रिएटेड है, लेकिन उसमें कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, तो न ट्रीज हैं वहाँ पे, न बिलबोर्ड्स हैं, न बिल्डिंग्स हैं। ऐसा लगता है हम बिल्कुल अर्थली सेंस से अलग हो गए हैं, पूरे अर्थ से अलग हो गए हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव।
एंड टाइम हियर। आपके सारे पर्सपेक्टिव, सारी जो विचारधारा होती है अर्थ की, अर्थ पे रहने की, किस तरीके से चीजें दिखती हैं, क्या होते हैं, आपके इमेजिनेशन, आपकी परसेप्शन वगैरह, आपका टाइम का सेंस वगैरह, वो सब कुछ चेंज हो जाता है अंटार्कटिका में पहुंचते ही। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। एक इमेजिन करो, एक लाइक 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे आपने जूम करके बहुत सारी एक चीजें किसी पे जूम करके रखा है, फोकस करके रखा है। अब वो जूम आप जूम आउट कर रहे हो, धीरे 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 जूम आउट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। पहले छोटी सी चीज दिख रही थी, अब जैसे जैसे जूम आउट करते जा रहे हो चीजें और बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। एकदम से जब फुल एंगल में आप उसको जूम करके देखते हो, जूम आउट करके देखते हो, तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। सो माइक्रोस्कोपिक से माइटी व्यू तक पहुंच जाते हैं। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स। मिजेस एंड माइट्स, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों से लेके आप ब्लू वेल तक के बड़े बड़े या छोटे छोटे डस्ट के टुकड़ों से लेके आप आइसबर्ग्स तक पहुंच जाते हो, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। ये सच्ची बात है दोस्तों। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। एक ऐसा आइसबर्ग भी रिकॉर्ड किया गया है इतनी बड़ी साइज का, जिसकी साइज ऑलमोस्ट बेल्जियम जितनी बड़ी थी, राइट। Days go on and on in surreal 24 austral summer light। और यहाँ पे इस जगह पे आप जब रहते हो तो वहाँ पे दिन रात का फर्क पता नहीं पड़ता, क्योंकि सन की रोशनी इस तरीके से आती है कि आपको पता नहीं पड़ता है। लाइक डेज निकल जाते हैं, 24 आवर्स निकलता जाता है। ऑस्ट्रल समर लाइट हमेशा बनी रहती है, तो रात कभी दिखती ही नहीं है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस मींस ऑल प्रिवेल्ड साइलेंस, यानी चारों तरफ आपके साइलेंस ही साइलेंस है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच। वो इंटरप्ट कब होता है साइलेंस? जब कहीं पे कोई एवलांच यानी कि बर्फ का तूफान आता है और कैल्विंग आइस शीट या फिर पूरी पूरी आइस शीट पिघल के गिरती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। ये पूरी गिरती है जब आइस शीट का भी, तो वो पूरे के पूरे प्लेस पे नीचे कुछ अगर किसी का छोटा मोटा कोई मतलब वाहन पड़ा हो या कोई चीज पड़ी हो, कोई जानवर वगैरह कहीं गलती से हो वगैरह, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, वो सब की सब ढक जाती है उस व्हाइट शीट से। पहले ही चारों तरफ व्हाइट है, लेकिन वो भी व्हाइट शीट पिघल के नीचे की तरफ आ गई तो नीचे कोई होगा भी तो वो दब जाएगा उसके नीचे। यही इंटरप्ट करता है साइलेंस को, अदरवाइज वहां पे हमेशा ऑल टाइम साइलेंस ही रहता है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history। आप जब अगर वहां पे हो, सच में वहां पे खड़े हो, तो सच में आपको अंदर से एक ऐसा फोर्स आएगा कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाओगे कि अर्थ कहाँ से आई है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब वगैरह सब आप इस सब पे सोचने को मजबूर हो जाओगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस मींस फोरकास्ट। एक तरीके से डायग्नोसिस होता है जब चीजें खराब हो जाती है, उसके बाद डायग्नोस करते हैं, पता करते हैं उसके बारे में क्या खराबी है। प्रोग्नोसिस मींस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आगे का फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो फोरकास्ट जो है ह्यूमंस के लिए अगर किया जाए इसको देख के, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या अच्छा नहीं दिखता है वो देखते हैं आगे। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशंस have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, ये दूसरा सेक्शन है चैप्टर का जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें इसने ह्यूमन बींग्स के जब अराइवल हुआ इस अर्थ पे, तब उन्होंने क्या किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अर्थ पे, वो बताया है। ह्यूमन बींग्स का जब मैक्सिमम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो हम देखते हैं वो लगभग 12,000 13,000 ईयर्स अगो की है, या उससे ज्यादा अगर मान भी ले तो 15,000 ईयर्स अगो, उससे पहले की सिविलाइजेशन है ही नहीं। तो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस कितना है? अगर अर्थ की जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर जियोलॉजिकल क्लॉक मानी जाए बड़ी सी, तो उसमें ह्यूमन बींग का एग्जिस्टेंस इज लाइक barely few seconds only, but we have created a like domination on over nature, right? ह्यूमन बींग्स ने इस छोटे से टाइम में, सेकेंड्स ऑफ टाइम अंडर जियोलॉजिकल क्लॉक, दे हैव क्रिएटेड अ डोमिनेंस ओवर nature, over earth. Actually they have tried to create, I will not say they have created, because earth sometimes has its overpowers and it can overrule anybody, right? जैसा कि आजकल भी हो रहा है, आप देख रहे हो एक छोटे से कोरोना ने सारे इंसानों को रोक दिया है, सारा डेवलपमेंट रुक गया है। तो इंसान की हैसियत उसके सामने एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, देखो हम barely few seconds के लिए एग्जिस्ट हैं ह्यूमन बींग्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, but in that short amount of time we have managed to create quite a ruckus। ruckus मतलब क्या होता है? फैलावड़ा, रायता। हमने रायता फैला रखा है इतना बड़ा, हमने सारी चीजें फैला के रखी है, कियोस कर रखा है पूरा का पूरा। etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities।
और उससे हम अपनी मतलब डोमिनेंस दिखा रहे हैं अर्थ के ऊपर। हम पहले छोटे से विलेजेस बनाए, फिर टाउन्स बनाए, हम अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं नेचर के ऊपर। हमने छोटे से विलेजेस बनाए, टाउन्स बनाए, सिटीज बनाई, मेगा सिटीज बनाई, बढ़ते ही जा रहे हैं, रैपिड इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज मल्टीप्लाइंग लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया नहीं होता, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं फटाफट फटाफट। वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में ह्यूमन बीइंग की बात करें अर्थ के ऊपर, ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक अ वायरस एंड मल्टीप्लाइंग लाइक वायरस। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. ये जो अर्थ है, किसी की, इंसान की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई चीज नहीं है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट, राइट? और इस प्लैनेट में हमारे साथ में लाखों करोड़ों दूसरे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर, plants are there, life is there. Apart from human being, there are many other forms of life over this planet available, right? So ये अर्थ, ये planet जो है उन सब का है, but we human being actually are trying to get the dominance over nature। और ये limited resources जो है अर्थ के, जो सब स्पीशीज के हैं, उसके साथ हम बैटल कर रहे हैं, उनसे खींच रहे हैं, उनसे छीने जा रहे हैं। And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और हम पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, उससे पोल्यूशन भी होता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल जलते हैं या कुछ और जलता है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक बहुत हार्मफुल गैस है अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, वो क्रिएट होती है। उसका एक चारों तरफ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट सा बन गया है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। हम जानते हैं कि आजकल कहीं भी अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी कोई भी डिबेट या ग्रुप डिस्कशन या कोई ऐसे कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक कौन सा है? एनवायरमेंटल इश्यूज, और उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग, राइट? बट ये सिर्फ डिबेट का इशू नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल थ्रेट है हमारे सामने। वो हम जब घर में बैठे हैं, टीवी पे अगर देख रहे हो, उसके बारे में सुन रहे हो या डिबेट कर रहे हो स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो हमारे लिए सिर्फ एक टॉपिक है, हम उस पर सिर्फ थोड़ा सोचते हैं, बात करते हैं, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, फिर वापस अपनी रूटीन एक्टिविटीज में लग जाते हैं और वापस से वही काम करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? तो ये एंटार्क्टिक की पूरी आइस शीट अगर मेल्ट हो जाए या गल्फ स्ट्रीम ओशियन की करंट अगर रुक जाए तो क्या होगा? ये एंटार्क्टिक पूरा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसकी आइस शीट मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, शायद दोबारा से एक आइस एज आ सकता है। तो ह्यूमन बींग्स का कहाँ एग्जिस्टेंस होगा? ह्यूमन बींग तो शायद खत्म ही हो जाएंगे। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? जैसे कि हम दुनिया को जानते हैं वो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? मे बी नॉट। ईदर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। हो सकता है शायद नहीं भी हो, बट कुछ भी हो, एंटार्क्टिका इस डिबेट के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिस्कस करने के लिए। नॉट जस्ट because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। अब एंटार्क्टिका क्यों क्रूशियल एलिमेंट है, उसके लिए कुछ रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे भाई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, कभी सस्टेन नहीं करी ह्यूमन पॉपुलेशन, इसीलिए ह्यूमन टच कभी नहीं हुआ है। तो जैसे नेचर ने फॉर्म किया उसको वैसे ही नेचर के ही प्योर फॉर्म में है, प्रिस्टीन फॉर्म में है। प्रिस्टीन मीन्स प्योर, होली, तो होली फॉर्म में अभी भी वैसे का वैसे एग्जिस्ट करता है। दैट इज नॉट द केस, दैट इज वन ऑफ द रीजन, yes, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records। क्योंकि इसके आइस कोर्स के अंदर अगर आप देखो और उसके ऊपर रिसर्च करो तो आपको पता पड़ेगा इनके अंदर में मोर देन 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस।
तो उसको हम स्टडी करने जाएं, उसको हम रिसर्च करने जाएं, तो हमें बहुत कुछ पता पड़ सकता है अर्थ के बारे में, अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में, स्पीशीज के इवोल्यूशन के बारे में, अर्थ का प्रेजेंट और अर्थ का फ्यूचर भी काफी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। यही कोट थी शुरुआत में, चैप्टर के शुरू में जो कह रही थी, वही कोट दोबारा से आपको समझ में आई होगी अभी, कि अगर हम एंटार्क्टिका को अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से समझें, अच्छे से रिसर्च करें, तो हम अर्थ का पूरा पास्ट, पूरा प्रेजेंट और पूरा फ्यूचर भी समझ सकते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन अर्थ्स पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हिच इज द प्लेस टू गो? एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो, राइट? Students on ICE, the program I was working with on the Shokaski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world, to the ends of the world, and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अब ये प्रोग्राम के बारे में बता रही है। प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइज। ये शॉकस की शिप के अंदर में बैठ के बच्चों को ले जाते हैं और वही सिखाते हैं। इनको डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ पे इनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू अंडरस्टैंड अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट बेटर, राइट? उनको एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है। एंड फाइनली व्हेन दे हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे स्टार्ट respecting the planet more. It's been in an operation for 6 years now. जब ये आर्टिकल लिखा था उससे पहले 6 साल से पहले से ये ऑपरेशन चल रहा था। Headed by the Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he um, with students on ice, he offered the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. Right, ये क्या कहता है कि with students on ICE he offers the future generation of policy makers. ये student on ICE जो प्रोग्राम है उससे फ्यूचर जनरेशन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि आज के यंगस्टर्स कल जाके बड़े होंगे तो पॉलिसी मेकर्स वही बनेंगे, तो वो फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स को सिखा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहा है एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। और वो एज जो है अभी यंग जो एज है, टीनेज है, वो एक ऐसी एज है जब लोग ज्यादातर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होते हैं और वो रेडी टू एब्जॉर्ब होते हैं। उनकी लर्निंग ग्रास्पिंग पावर भी बहुत हाई पॉइंट पे होती है, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, दे आर रेडी टू लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर रेडी टू एक्ट। क्योंकि पुराने लोगों को, सीनियर लोगों को शायद वो सीख भी जाए, समझ भी जाए, लेकिन वो एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे और कितना उनका विलिंगनेस होगा करने का, वो भी डिफिकल्ट है। बट यंगस्टर्स, teenagers, they are ready to absorb, ready to learn, and most importantly, ready to act. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. अब ये रीजन बता रही है कि अगर आप स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का जो एक सक्सेसफुल हुआ है इतना, तो क्यों सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। क्योंकि साउथ पोल यानी कि एंटार्क्टिका की तरफ अगर आप जाते हो एक बार, अगर कोई जाता है तो उससे अफेक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। उसके दिमाग में असर कर जाएगा, उसकी सोल तक असर कर जाता है, वो उसके अंदर विचारों में आ जाती है वो चीजें एकदम से। सो इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. अपने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मीन्स अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में या गाँव में बैठे बैठे टीवी पे या किताबों में या डिस्कशंस में आप जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या आइस कैप्स मेल्टिंग के बारे में सुनते हो या देखते हो और उसको देखते हो या इमेजिन करते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचना, थोड़ा डिस्कस करना, ये सब बहुत ईजी है। आपको एक टॉपिक ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। डिबेट करोगे, काम खत्म करोगे, उसके बाद रूटीन कामों में लग जाओगे, वापस वही डेवलपमेंट करोगे, वापस वही पोल्यूशन फैलाओगे, वापस वही ग्लोबल वार्मिंग में आप एड ऑन करोगे। थोड़ी देर पहले डिस्कशन में आप बोल रहे थे कि इसको कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं करोगे। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, लेकिन अगर आप जब एंटार्क्टिका विजिट करते हो वहां पे आपको एक्चुअली सीरियसली देखने को मिलती हैं ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स गिर रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, आइस शेल्फ्स
कोलैप्स हो रहे हैं, आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सच में हो रहा है. यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. तब आपको सच में रियलाइज होता है कि यार ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ टॉपिक नहीं है, सिर्फ डिबेट नहीं है, ये सच में प्रॉब्लम है और ये सच में खतरा है इंसानों के लिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए. इसीलिए जो स्टूडेंट्स ऑन आइज वाले प्रोग्राम के बच्चे हैं वो इसको सच में अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ सीखते हैं और इसको आगे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए या संभाला जाए उसकी प्रैक्टिस करते हैं. तभी ये फायदेमंद होता है प्रोग्राम. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity. जैसा कि हमने कहा एंटार्क्टिका में सिविलाइजेशन नहीं है लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत लाइफ अवेलेबल है. स्मॉल सिंपल इकोसिस्टम है, वहाँ पे छोटा सा बायोडाइवर्सिटी है. वहाँ पे कैसा है अब वो उसको एक्सप्लेन कर दी है. एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, वहाँ पे एक सिंपल इकोसिस्टम में बहुत बर्फ है, बर्फ के नीचे पानी है ओशन वाला, उस पानी के नीचे शायद थोड़ा बहुत लाइफ अवेलेबल है मछलियों के रूप में या किसी एक प्लांट वगैरह के रूप में, और उसके ऊपर सिर्फ वाइट शीट की बर्फ ही बर्फ है और ऊपर सिर्फ ब्लू होराइजन वाले स्काई है. And lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. कहते हैं ना न्यूआंसेस, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, छोटी छोटी डिटेल्स, अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो बड़ी चीजें अपने आप ही सही बैठ जाएंगी. ये वही कह रही है कि हम अगर देखें कि एनवायरनमेंट में छोटा सा चेंज कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड के दौरान एक बड़ा चेंज हो सकता है, बड़ा रेपरकशन हो सकता है, उसका बड़े नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं. तो कहते हैं ना एक इंसान अगर एक पेड़ को संभाले तो ये छोटा सा चेंज है, लेकिन हम कितने सारे लोग हैं, हम इतने सारे लोग एक एक पेड़ लगाए तो कितने सारे पेड़ हो गए, तो शायद एक बड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा उसका. छोटी चीजें बड़े इफेक्ट ला सकती हैं. वही ये बता रही है हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. अब ये एग्जाम्पल दे रही है. ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक नाम है छोटी सी घास का जो उस एंटार्क्टिका के ओशन के अंदर नीचे, सदर्न ओशन जो है उसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे छोटी सी घास होती है. ये घास एक्चुअली वहाँ पे लाइफ का सोर्स है. ये घास उगती है वहाँ पे, उस घास के द्वारा कोई एक मछली की स्पीशीज जिंदा रहती है उसको खा के, और बाद में उस मछली को खा के दूसरी मछली की स्पीशीज रहती है. ऐसे 2-3 स्पीशीज रहते हैं, छोटी सी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. पूरी के पूरे southern ocean की food chain इसी फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर बेस है. अब अगर ये फाइटोप्लैंक्टन बनना बंद हो जाए, ग्रो करना बंद हो जाए, तो पूरी की पूरी फूड चेन गड़बड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी. कितना बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा इसका. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. अब इसने ये बायोलॉजिकली हमें जो एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको समझाया है. ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं छोटे से सिंगल सेल प्लांट होते हैं, और ये सन की एनर्जी, इनको सन की एनर्जी कहाँ मिलती है, ये तो सदर्न ओशियन के अंदर में बॉटम में है, फिर भी थोड़ी बहुत सन की हीट या सन की रोशनी से भी इनको काफ़ी होता है, इनको छोटा सा अमाउंट भी काफ़ी हो जाता है, इसीलिए यही प्लांट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कोई प्लांट भी नहीं है. तो ये छोटा सा प्लांट जो है सिंगल सेंड, वो छोटी सी अमाउंट में सन की हीट या लाइट लेके उसको कार्बन के साथ में सिंथेसाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, जो कि अपना इनका फूड प्रोसेस होता है प्लांट्स का, जो कि आप जानते ही हो. ये प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं, उससे ये ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं तो इसकी वजह से दूसरी स्पीशीज भी जिंदा रह पाती हैं. यही एक सोर्स है, एकमात्र सोर्स है पूरी की पूरी फूड चेन का सदर्न इंडियन ओशन में. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. अब एक खतरे वाली बात, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है, बोला है कि ओजोन लेयर में जितने छेद हो चुके हैं पहले से ही, अब अगर और ज़्यादा छेद होते जाएंगे तो उसकी वजह से कार्बन की अमाउंट जो कम होती जाएगी और ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फाइटोप्लैंक्टन, उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फाइटोप्लैंक्टन धीरे धीरे खत्म हो सकता है, which in turn will affect the lives of all the marine animals and the birds of the region. तो पूरे के पूरे उस रीजन के मरीन एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इसी सोर्स के ऊपर, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरा पूरा वर्ल्ड का द ग्लोबल कार्बन साइकिल उसके ऊपर भी पूरा इफेक्ट पड़ेगा. ये एक बहुत बड़ी खतरे की बात है. इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल मीन्स एक तरीके से कंपैरिजन, मेटाफर है.
There is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. सेम वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, आप लाइफ में छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो, स्माइल का ख्याल रखो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों से प्यार से बात करो, और चीजों को समय पे खत्म करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते चलो, छोटे छोटे स्टेप लेते चलो, बड़े बड़े स्टेप्स अपने आप होते जाएंगे, बड़े बड़े काम अपने आप होते जाएंगे। ऐसे ही ये फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देते हुए मेटाफर के रूप में उसने बताया कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन का ख्याल रखेंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसे ही टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। वॉक ऑन द ओशियन, अब ये थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। अब इसमें वॉक ऑन द ओशियन, यहाँ पे एक थोड़ा सा एंटरटेनिंग पार्ट आता है चैप्टर का। अभी तक हम काफी कुछ रियलिस्टिक बातें कर रहे थे, स्टडी रिलेटेड, अकेडमिक, और जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट वगैरह है उसकी बात कर रहे थे, ह्यूमन इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री देख रहे थे। अब जब ये एक्चुअली एंटार्क्टिका में गए हैं, उस जर्नी का थोड़ा सा एंटरटेनिंग या एंजॉयमेंट वाला पार्ट उसने दिखाया है। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. अब ये कह रहे हैं कि हमारी जर्नी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैपनिंग वाले इवेंट थे उसके अंदर में, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया इवेंट जो बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल से थोड़ा ही पहले हम लगभग 65 डिग्री साउथ पे थे। वहां पे हमें एक सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। क्या हुआ? द शॉकलेस्की जो था, इनका जो शिप था, वो किसी तरीके से had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island। तो किसी तरीके से उस बर्फ के ऊपर, बर्फ वो ओशन के ऊपर ही थी जमी हुई बर्फ, उस बर्फ को चीरता हुआ वो शिप किसी तरीके से इतनी अंदर तक चला गया जहां तक वो जा सकता था। मैक्सिमम वो उसका थ्रेशोल्ड आ गया था, इसके आगे नहीं जा सकता था, राइट। वो पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच की एक पर्टिकुलर जमीन के हिस्से पे पहुंचा था। वहां पे जमीन भी नहीं थी, वो था तो ओशियन ही, लेकिन ओशियन के ऊपर वो बर्फ की परत जमी हुई थी जो एक थिक मोटी परत थी। अब उससे आगे शिप नहीं जा सकता था, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। तो इससे हम आगे नहीं जा सकते थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब कैप्टन का हुक्म था कि कैप्टन ने कहा कि भाई अब हमसे आगे नहीं जा सकते हैं, तो आगे जाने का फायदा है नहीं, कोशिश करने का फायदा है नहीं, अब हमें वापस जाना चाहिए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम जब वहां तक पहुंच चुके थे तो सबको एक मौका दिया गया। बट बिफोर वी डिड, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। हमको बोला गया कि चलो इस शिप से उतरो सबके सब नीचे और इस ओशियन पे वॉक करो। इमेजिन, ओशियन पे वॉक, पानी पे वॉक नहीं है, पानी अब पूरा बर्फ जमा हुआ है, लगभग 1.5 मीटर का मोटी परत है बर्फ का। इतनी मोटी परत है बर्फ की, वो हिल भी नहीं सकती है, शिप अंदर नहीं जा सकता है, तो इंसान तो खड़ा हो सकता है, आराम से वॉक कर सकता है उसके ऊपर, और ओशियन के ऊपर वॉक कर रहा है। क्या एंजॉयमेंट है। सो देयर वी वर all 52 of us, इस प्रोग्राम में ये 52 स्टूडेंट्स गए थे, kitted out in Gore-Tex and glares। Gore-Tex उनकी यूनिफॉर्म का नाम है, glares मींस उनको एक पर्टिकुलर चश्मे दिए गए थे पहनने को, तो kitted out मींस उसमें पहन के रेडी हुए थे वो। walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। हम वॉक कर रहे थे कहाँ पे? उस whiteness पे जो कि दिख रही थी पूरी चारों तरफ फैली हुई, क्योंकि जहां तक नजर जाओ सिर्फ वाइट वाइट बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अंडरनीथ अवर फीट was a meter thick ice pack, और हमारे पैरों के नीचे लगभग 1-1.5 मीटर थिक आइस पैक था जो कि हिल नहीं सकता था। एंड अंडरनीथ दैट, उस आइस पैक के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे एक पूरा समंदर था, ओशियन था, लगभग 180 मीटर डेप्थ का ओशियन था उसके अंदर में, लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, ये उसका डिस्क्रिप्शन का स्टाइल है, उस ओशियन को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि वहां पे लाइफ कहाँ है अवेलेबल? उसी सॉल्ट वाटर के अंदर में। इन द पेरिफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes। हमने जब आसपास नजर घुमाई तो हमको थोड़ी दूर पे एक जगह पे थोड़ा सा आइस हिल या आइस टॉप बना हुआ था जिसके ऊपर क्रेब ईटर सील्स बैठी हुई थी, और शायद वो स्ट्रेचिंग करने के लिए बैठी थी, क्योंकि पानी में तैरते तैरते थक गई होंगी और छोटे से होल के द्वारा बाहर आई होंगी और आइस शीट पे बैठ के आराम से स्ट्रेचिंग कर रही है, सन बात कर रही है एक तरीके से, सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री।
अब इसको कितना बढ़िया मेटाफर लिया है रियल लाइफ से। रियल लाइफ में गर्मी में सन की हीट से तपते हुए जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते गली के, वो थक जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो एक बरगद के पेड़ के या किसी बड़े से पेड़ के नीचे छांव में छाया लेने बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं वहां पे। वैसे ही ये जो क्रेब ईटर सील्स हैं, पानी के अंदर बैठी हुई हैं, वहां तक ठंडी में भरी हुई है, तो ठंडी से परेशान होकर वो थोड़ी देर के लिए बाहर सन बाथ लेने आई है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन। ये एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री उनके लिए रिवील हुई थी कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि सारी दुनिया दुनिया में सारी की सारी जो चीजें हैं वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई बेटर, कोई वर्स, कोई अच्छा, कुछ बुरा, ऐसा सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब रिलेटेड है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later. अब यहाँ पे वो सेक्शन भी खत्म हुआ, यहाँ पे वो जर्नी रिटर्न कर रही है। रिटर्न जर्नी में भी सेम तरीके से उसने डिस्क्राइब किया है कि 9 time zones, 6 checkpoints और 3 bodies of water और many ecospheres को भी पार करके जब ये वापस अपने घर पहुंची, I was still wondering about the beauty of balance and play on our planet। कि जो नेचर ने हमारे प्लेनेट पे जो ब्यूटी का बैलेंस बना के रखा हुआ है, चारों तरफ वो मजा ऐसे कर रहा है, कहीं बर्फ जमी हुई है, कहीं पानी है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पहाड़ है। यही तो ब्यूटी ऑफ बैलेंस है जो पूरा का पूरा चल रहा है नेचर के द्वारा। ये वंडरिंग इफेक्ट, वो वंडरिंग थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। अब उसके दिमाग में फिर से विचार आ रहा था वो कि अगर एंटार्क्टिका दोबारा से वार्म प्लेस बन जाए जैसे कि पहले हुआ करता था, तो क्या होगा? शायद विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम वो देख भी पाएंगे कि नहीं? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनोस? क्योंकि इंसान अभी हो सकता है इंसानों के उस वक्त इवोल्यूशन जैसे हुआ था वैसे के वैसे एक्सटिंक्शन भी हो जाए। अभी हो सकता है कि उस टाइम तक तो इंसान पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो जाए यहाँ पे, जैसे कि डायनासोर्स, मैमथ्स या वुली राइनोस एक्सटिंक्ट हुए थे, ये सारे एक्सटिंक्टेड एनिमल हैं। तो उनकी तरीके से बता रही है कि हो सकता है ह्यूमन बीइंग, पूरी की पूरी स्पीशीज जो है ह्यूमन बीइंग की, वो शायद एक्सटिंक्ट हो जाए तब तक, हो सकता है। हु इज टू से? फ्यूचर किसने देखा है, कौन बता सकता है? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, बट अभी इसके दिमाग में, क्योंकि ये ताजा ताजा 2 हफ्ते बिता के आई है, किसके साथ? अ बंच ऑफ टीनेजर, 52 टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, जिनके अंदर में अभी भी एक आइडियलिज्म है टू सेव द वर्ल्ड, एक विलिंगनेस है टू सेव द वर्ल्ड। दे हैव अब्सॉर्ब्ड समथिंग, दे हैव लर्नड समथिंग एंड दे आर रेडी टू एक्ट ऑन दैट। All I can say is that a lot can happen in a million years। कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, करोड़ों सालों के अंदर में आप देखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन के अंदर क्या हो सकता है अगर हम उसका ध्यान दें? If we can take care of small little things, then the big things will fall into place automatically, right? It can, a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। यही एक थॉट के साथ में उसने स्टोरी एंड करी है कि हम एक एक दिन का ख्याल रखें, एक एक दिन हम अच्छी चीजें करते जाएं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ हम पॉजिटिव करें, कुछ हम बायो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करें, कुछ हम अर्थ के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, कुछ हम अपनी ग्रीड को कम करें, कुछ हम अपने डेवलपमेंट को कम करें, कुछ हार्म्स कम करें हम अर्थ को। तो शायद ये छोटे छोटे डिफरेंसेस एक बड़ा सा इफेक्ट ला सकते हैं। दोस्तों ये इसकी जर्नी का एक पूरा पूरा सार इसने बता दिया है इसके अंदर में, कि जहां इसने बताया है कि जो एक जर्नी इसने की थी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत में एंटार्क्टिका की, और एंटार्क्टिका एक ऐसा प्लेस है जहां विजिट करो तो आपके दिमाग पे वो इफेक्ट छोड़ के जाता है। और उसने एक शुरुआत में भी कोट कहा था कि एक यही ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और हिस्ट्री और फ्यूचर सब कुछ कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। उसी को कनेक्ट करते हुए इस आर्टिकल के द्वारा वो यही कहना चाहती है कि अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको समझो, ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर जो बहुत खराब है उसको समझो, और आगे का फ्यूचर जो है अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके लिए सोच विचार करो। और लास्ट में एक सीख दी है, टेक केयर ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। इस तरीके से आप स्टोरी को समझोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहती है, ऑथर का मैसेज क्या है और क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है एज अ रीडर। यू आर ऑल्सो यंगस्टर्स, you may not have got the opportunity to visit Antarctica, but at least virtually, as a vicarious experience, you can understand how the place is like or what the effect she's talking about, what we can do about it, right? So that's what the chapter is all about, and that's all about it from me as well.
I really hope that you enjoyed the journey with me, the journey to the end of the earth, and as well as I'm sure you are finding a lot of value in my insights with this, right? So if you really find some value in my content, you know what you need to do, right? Go ahead and share this video or my channel link with others you think can get benefit from this, right? And also, you go ahead and subscribe to my channel if you haven't done that. Please do not forget to click on the bell icon, because that way you will keep getting notification of every video I post up, right? You will get the videos after videos so that you can keep on learning, keep on growing. Right, guys? That's the message. Enjoy learning. Have a nice day.